स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता क्या है? बेसिकली जब कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से कम हो, ऑलमोस्ट अभी 8,000 या 10,000 करोड़ से नीचे हो, उसको एसएमई में गिन लिया जाता है। ब्रॉडली 8-10 हजार करोड़ के बाद वो स्मॉल कैप में एंटर कर जाती है। Hi everyone. Thanks for taking your time out from your busy schedule. Uh, we at AIF PMS Experts India, we are thrilled to announce our brand new show, which is Ask the Expert Show. Through webinars, we aim to share insights into different asset classes, forecasting knowledge, exchange amongst our investor community. So my name is Devanshu Bindlish, and I am the Vice President for AIF PMS Experts India. With me, I have speaker Mr. Rajesh Singla, is the founder and CEO of Planify. Let me take a moment and introduce Mr. Rajesh Singla. So, Mr. Rajesh Singla is the founder and CEO of Planify, a leading investment platform that drives the gap between private and public market opportunities with a strong background in finance and entrepreneurship. Rajesh ji has built Planify into a trusted name for investors seeking access to pre-IPO startups and alternative investment opportunities. Under his leadership, Planify has enabled wealth creation and thousands of investors by giving an access to high growth private companies. Rajesh ji is also known for his visionary approach, deep market insights, and commitment to financial inclusion in India evolving investment landscape. Welcome, Rajesh ji. Thank you, Divyanshu ji, for having me here. Yeah. So Rajesh ji, as you know, the format of the show is very simple. You can go ahead and discuss about your offerings, and then we will have Q&A from our investment community. Sure. Shall Over to you. I share my screen? Yeah, please go ahead. Is it visible? Yeah, Rajesh ji, I think it's loading. Yeah, now it's visible. Perfect. Great. So, guys, hi, I'm Rajesh Singla, founder of VentureX Fund. Today we will be discussing here SME focused category one alternate investment fund. So first question which people ask me कि जी SME ही क्यों? Why SME fund? Why not something else? See, in AIF, in alternate investment, we have broadly, if we want to categorize, there are 4-5 segments. तो पहला segment होता है pre IPO का, है ना? Which where people can invest before the IPO. The second section is of startups. और जब वो स्टार्टअप्स बड़े हो जाते हैं तो उनको यूनिकॉर्न्स बोल देते हैं. द थर्ड सेक्शन इज ऑफ एसएमईज and so SMEs goes for small and medium enterprise. Startups are the companies which are tech enabled, है ना, जिसमें apps का स्पेशली ज्यादा काम रहता है. And the fourth category is the delisted stocks, where companies either if they have filed for NCLT, मतलब या तो वो companies ठीक नहीं working कर पाई या फिर because of some M&A they're getting taken over by other big companies. And in this process, there are private equity funds which basically take over these companies and then they try to revamp them and again list them out. So every fund has its own focus. जैसे स्टार्टअप्स में आपने VCs का नाम बहुत बार सुना होगा, वेंचर कैपिटल फंड्स ज्यादा फीचर करते हैं. तो इन चारों सेगमेंट्स में ओवरऑल 58,000 कंपनीज हैं और जबकि लिस्टेड स्टॉक्स में तकरीबन 2,000 कंपनीज हैं. तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का जो ये मार्केट है, ये कंपैरिजन में इन कंपेयर टू लिस्टेड कंपनीज काफी बड़ा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आपने इन चारों कैटेगरीज में से एसएमई ही क्यों पिक किया? तो आई गिव यू अ बिट ऑफ माय बैकग्राउंड. सो at Planify, we have been working. So I'm also a founder of Planify. So from last 6 years, we have been working in the unlisted market in these all 4 sections. तो व्हाट वी रियलाइज कि प्री आईपीओ स्टार्टअप्स एसएमई और डीलिस्टेड स्टॉक्स में अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है तो सबसे अच्छे रिटर्न एसएमईज में बनते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में बनते हैं. तो विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऐसा क्यों बनता है. अभी तक हमने कुछ 34 सक्सेसफुल एग्जिट्स किए हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दोज एज वेल इन दिस इन टुडेज कॉल. तो एसएमईज को ही अगेन वापस से बात करते हैं रिटर्न्स के ऊपर. तो हमने जब इसको लिस्टेड वर्ल्ड के साथ भी कंपेयर किया तो भी हमने मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही देखे. तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
So there are about, so what we have done is, so we have taken Nifty 50 as first index. तो निफ्टी 50 लिया, फिर निफ्टी स्मॉल कैप लिया जो कि 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है, और फिर हमने निफ्टी एसएमई का इंडेक्स ले लिया। तीनों निफ्टी के इंडेक्सेस हैं, और उसको लास्ट 5 इयर्स के लिए जो उन्होंने रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उनको हमने बेसिकली चार्ट आउट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और सीएजीआर टर्म्स में भी। एब्सोल्यूट टर्म इज कि अगर किसी ने मतलब लमसम पैसे लगाए हो तो कितने बने, और सीएजीआर इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ब्रॉडली लेवल पे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं कि हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। तो अगर एक चीज इस पूरे 5 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड हमें एक यूनिवर्सली दिखता है कि हर साल एसएमईज ने आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप को, और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। और ये ट्रेंड हर साल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक साल हुआ दूसरे साल नहीं हुआ। ये कंसिस्टेंसी हमें हर पांचों के पांचों साल में दिखती है। इनफैक्ट अगर मैं ये चार्ट को 5 की बजाय 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी करता तो भी रिजल्ट सेम आते। अब ये चार्ट में हमने ये तो देख लिया कि आउट परफॉर्मेंस है एसएमई की स्मॉल कैप से और निफ्टी से। ये आउट परफॉर्मेंस कितनी है उसको भी एक बारी समझते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज कि एक 5 ईयर की एग्जांपल पकड़ लेते हैं। 5 सालों में निफ्टी के एसएमई के इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1180%, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो तकरीबन 11.8 करोड़ रुपीस का रिटर्न इंडेक्स ने दिया है। और वही स्मॉल कैप में सिमिलर इन्वेस्टमेंट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 3.33 करोड़। यही अगर निफ्टी में वही पैसा किसी ने डाला होता तो वही रिटर्न 1.5 करोड़ का है। नो 1.5 करोड़ में और 11.8 करोड़ में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का डिफरेंस है, 8 गुना का फर्क है सिर्फ 5 साल में। और यही अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप का कंपैरिजन देखें एसएमई के साथ तो ये 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स का डिफरेंस है। एंड अगेन दिस इज ओनली 5 इयर्स। यही चीज अगर हम सीएजीआर टर्म्स में भी देखें तो वो रिटर्न्स में हमें दिखेगी कि इंडेक्स लेवल पे इंडेक्स ने ही 66% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, और वही स्मॉल कैप ने 34% और निफ्टी ने 20% दिया है। गाइस ये डेटा 31 मई तक अपडेटेड हमने बना कर ये स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट की है। ऑब्वियसली हर महीने मार्केट थोड़ा बहुत प्लस माइनस करती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिटर्न्स हो सकते हैं, पर ब्रॉडली समझने का मतलब क्या है कि एसएमईज का जो आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3.5 गुना स्मॉल कैप से और ऑलमोस्ट 8 टाइम्स फ्रॉम निफ्टी। दैट इज द रीजन कि एसएमई में हमें इन्वेस्टमेंट, हमने जो फंड किया वो एसएमई फोकस फंड किया ताकि अच्छे से अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकें। अब लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा एसएमई के वर्ल्ड के बारे में और समझाइए कि अभी तक क्या सा कैसा रहा है इसमें। देखिए एसएमई की अगर मैं बात करूं तो आज से 30 साल पहले जब इन्फोसिस, 30 या 32 साल पहले जब इन्फोसिस अपना आईपीओ लेकर आई थी तो उसकी वैल्यूएशन भी नियर 150 करोड़ थी। स्मॉल एंड मीडियम पे एंटरप्राइज होता क्या है, बेसिकली जब कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से कम हो, ऑलमोस्ट अभी 8,000 या 10,000 करोड़ से नीचे हो, उसको एसएमई में गिन लिया जाता है। ब्रॉडली 8-10 हजार करोड़ के बाद वो स्मॉल कैप में एंटर कर जाती है। और आइडिया क्या रहता है एसएमईज में इन्वेस्ट करने का कि कंपनीज को बिटवीन 100 to 500 करोड़ में पकड़ना है, और जब वो 10 से 15 हजार की रेंज में चले जाएं तब उसमें से एग्जिट करना है। तो उसमें पैसे जो हैं वो काफी अच्छे मल्टीफोल्ड बन जाते हैं। और अभी तक मैं बात करूं तो इन्फोसिस जब 32 इयर्स पहले आई थी तो मात्र 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे उनका आईपीओ आया था। एंड इन 32 years कंपनी हैज गॉन ऑन टू बिकम, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन आईटी सेक्टर इन इंडिया। आज 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इन्फोसिस का। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक 1996 में मात्र 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट होने के लिए एक्सचेंज पे आया था, और आज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक है। तो एसएमईज, और उस वक्त क्या हो रहा था 1991 में अगर आप देखें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर लेट श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस वक्त और जो प्राइम मिनिस्टर भी बाद में जाकर बने, उन्होंने तब इकोनॉमी को ओपन अप किया और हमने अपने आप को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किया। तो
उस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में आईटी का काम, बीपीओस का काम और इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनीज काफी अच्छा ग्रो कर पाई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे खासे पैसे बनाए। तो सिमिलरली प्राइवेट बैंकिंग इंडिया में बढ़ रही थी इंटरनेट की वजह से और टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन की वजह से, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर दिए इन्वेस्टर्स को और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक भी बन गया इंडिया का। सिमिलरली लास्ट 5 to 10 years में अगर आप देखेंगे तो हमारा अब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। सर्विस बेस से हम काफी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं और कई सेक्टर जिसमें इंडिया इससे पहले कभी वेंचर ही नहीं किया, जैसे सोलर की कंपनीज हैं, डिफेंस की कंपनीज हैं, क्लीन वाटर की कंपनीज, ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। हमें लगता है कि अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये भी इस तरह की ही लेगेसी क्रिएट कर लेंगी जो आज इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज ने क्रिएट की है। तो आइडिया है कि इन कंपनीज को अर्ली आइडेंटिफाई करके इनमें इन्वेस्ट किया जा सके। अभी तक एसएमई 2013 में एक प्रॉपर एक्सचेंज बना दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। बीएससी का एक छोटा वर्जन बीएससी एसएमई के नाम से और एनएससी का एक छोटा वर्जन एनएससी इमर्ज के नाम से। और अभी तक तकरीबन 1200 कंपनीज ने इसके ऊपर लिस्टिंग की है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1/3 कंपनीज ऑलरेडी मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर चुकी हैं, छोटी एक्सचेंज से बड़ी एक्सचेंज में माइग्रेट हो गई है। इससे डिफरेंस सिर्फ यही आता है कि छोटी एक्सचेंज में जनरली लॉट में शेयर मिलते हैं, जबकि मेन बोर्ड पे आप सिंगल शेयर बाय कर सकते हो। तो लॉट में ऐसा हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन शेयर प्राइस 10 शेयर का लॉट बाय करना पड़ रहा हो, 25 शेयर का लॉट बाय करना पड़ रहा हो, 50, 100, 200, 500, 1000, डिपेंडिंग अपॉन उसका शेयर प्राइस कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से लॉट डिफाइन होता है। और जब वो मेन बोर्ड में मूव हो जाती है तो वो वाला सिस्टम हट जाता है और थोड़े से और चीजें चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड हो जाता है। तो गवर्नमेंट इनका इंट्रोडक्शन एसएमई को करने का पर्पस यही था कि कंपनीज को धीरे धीरे एक्सचेंजेस के ऊपर मूव किया जा सके, उनके कंप्लायंसेस, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर किया जा सके। तो इनके पास एक अच्छी विंडो आ जाती है 3-4 साल की। जैसे जैसे वो कंप्लायंसेस को समझते हैं वैसे वैसे अपने सिस्टम्स को वो और बेटर बना सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इन 1200 कंपनीज में से ऑलमोस्ट 290 कंपनीज, तो मतलब 300 होती तो ऑलमोस्ट पूरा ही 1/4 हो जाता है। तो हर चौथी कंपनी ने 33.4% से ज्यादा का कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न में दिया है। और ये एवरेज है, मतलब एवरी फोर्थ कंपनी हैज डन दैट। तो मतलब पावर सोचिए कि हर चौथी छोटी कंपनी इतना बड़ी है। और तकरीबन 3.5 साल का टाइम फ्रेम लगता है एक कंपनी को एवरेज एसएमई से मेन बोर्ड पे मूव होने के लिए। कुछ एसएमई की कंपनीज हमने ऐसे यहाँ पर दिखाई भी हैं जो कि ऑलमोस्ट 15 रुपए का, जैसे मेघना इंफ्रा का उनका स्टॉक 15 रुपए का स्टॉक आज 1000 लिस्टेड है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। मतलब व्हाट वी सी इज कि द रिटर्न क्लोज टू 67 टाइम्स। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 67 करोड़ हो गई 10 साल में। सिमिलरली ल्यूसेंट इंडस्ट्री में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन 9 years हैज बिकम 53 करोड़, सो एंड सो फोर्थ। तो रिटर्न्स जो हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे रिटर्न्स आए हैं ये पिछले 5-10 साल की मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं। अब पॉइंट वही आता है कि एसएमईज में, इवन अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, आज इंडिया की जीडीपी का 30% एसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 46%, मतलब मोटा मोटा 50% एसएमईज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें एसएमईज के बिना हमारी लाइफ नहीं है। इवन गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है ताकि एसएमईज को और पुश किया जा सके, जैसे मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, और एक एसएमई का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी बनाया गया है 50,000 करोड़ का। एसएमईज के कैश फ्लोज को इंप्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 45 डेज में सप्लायर को उनके पैसे देने पड़ते हैं। इन सबसे एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है। नाउ वी आर हैव ऑलरेडी बिकम अ फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। और आइडिया है कि अगले 2 साल में अगर इंडिया 3rd नंबर की बिगेस्ट इकोनॉमी बनना चाहती है तो एसएमईज को तो हमें बेसिकली ग्रो करना ही पड़ेगा। तो हम वो भी बात करेंगे जी कि ये चौथी कंपनी को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। बट अगेन थोड़ा सा और समझ लेते हैं मार्केट की फिलोसफी को, क्योंकि यही मेरी मतलब फर्स्ट स्लाइड है हमारी, कि लोग बोलते हैं कि ये जो शेयर प्राइसेस 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 40 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स,
जो अगले 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल में हो गए, तो इज इट मतलब वर्थ इट? मतलब ये क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने इन्फोसिस एचडीएफसी बैंक की एग्जांपल दी। बेसिकली गाइज, हम स्टॉक मार्केट को अगेन फ्रॉम अ बर्ड आई व्यू देखें, तो शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती हैं। तो हमारा एक फंडामेंटली क्या मानना है कि जिस पेज से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, उसी पेज से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर कंपनी 100% ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो शेयर का प्राइस भी 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में यूफोरिया है, मार्केट में तेजी है, इन्वेस्टर ज्यादा आ रहे हैं, स्टॉक प्राइस कुछ कंसिस्टेंटली 2-3 साल 100% ग्रो किया, और शेयर प्राइस भी 100% ग्रो करने की बजाय ज्यादा ग्रो कर गया, 400-500% ग्रो कर गया। तो कई शेयर का, बट लॉन्गर रन में अगर हम देखें तो इस ये एवरेजेस पे वर्कआउट करेगा कि जितने पेज से कंपनी की अर्निंग बढ़ी है, उसी पेज से शेयर प्राइस बढ़ेगा। और एसएमई के बीच में एक अच्छी चीज क्या है, एक 10 करोड़ की कंपनी, 20 करोड़ की कंपनी जब अपना आईपीओ वापस से लेकर आ रही है, जब वो अपना आईपीओ लिस्ट करवा रही है, और एक 50 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़ जितने का भी आईपीओ कर रही है, जब वो कैपिटल दोबारा बिजनेस में डाला जाता है, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए हो, चाहे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मशीनरी पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हो, तो उसकी वजह से बिजनेस अगले 3 साल से 5 साल में या 7 साल में, जो 10 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी है, 20 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट वी हैव सीन दैट इट कैन ग्रो टू 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन किस सेक्टर की है, किस तरह के बिजनेस में है। अच्छी ग्रोथ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वही बात आती है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ गई तो शेयर प्राइस बढ़ा, प्लस पी की एक्सपेंशन मिल गई। जनरली जब एसएमई के आईपीओ आते हैं, ये 10 से 15 या 20 की पी की ऊपर, प्राइस टू अर्निंग की रेशियोज के ऊपर मोटा मोटा अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब एक 20 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच जाती है, तो जो एक 10-15 का पी का मल्टीपल है, वो जनरली 30, 35, 40, डिपेंडिंग अपॉन कैसा इंडस्ट्री है, वैसा वैल्यूएशन मिलने लग जाता है। कई बार तो 100 से ऊपर की भी पी मिलने लग जाती है। इन दोनों की जब क्लबिंग हो जाती है, बेसिकली अर्निंग्स की ग्रोथ की और पी की एक्सपेंशन की, उसकी वजह से ये ऐसे जबरदस्त रिटर्न्स बन जाते हैं। तो ये एक अनदर पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अगेन अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो मुझे 18 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। 6 साल से हम प्लानिफाई को रन कर रहे हैं, और ये वेंचर एक्स फंड हमारा पहला मेडन फंड है। इस फंड को लेने के लिए, मतलब सेबी ने हमें ये लाइसेंस कुछ 2 साल की ड्यू डिलीजेंस करने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद ग्रांट किया है। तो नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन गेट दिस लाइसेंस, मतलब सेबी इज वेरी पर्टिकुलर while गिविंग these licenses. सिमिलरली अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, तो मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी में इशिमा है। सो बिफोर ज्वाइनिंग अस, शी वाज अर्लियर हेडिंग द वैल्यूएशंस फॉर यूरोपियन रीजन। तो यूरोप में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे जर्मनी है, वहाँ ड्यू डिलीजेंस, वहाँ इंजीनियरिंग गुड्स का काम होता है। फ्रांस है, वहां पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे परफ्यूम की बॉटल्स, फास्ट फैशन, ये सब चीजों का ज्यादा काम है। और यूके की मार्केट है, वहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ज्यादा है। तो हर कंट्री की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो इनकी जो ज्यादा एक्सपर्टीज है कंपनीज की, बिजनेसेस की ड्यू डिलिजेंसेस करना और वैल्यूएशंस को देखना है। सिमिलरली मेरे साथ मनीष नाथ जी हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी में। ही इज रैंक्ड नंबर 1 एआईएफ फंड मैनेजर अक्रॉस द वर्ल्ड। 50,000 एआईएफ फंड मैनेजर्स में इनकी फर्स्ट नंबर 1 की रैंकिंग है। ये बेसिकली लखनऊ के हैं, और हमें ज्वाइन करने से पहले ये आर्कस्टोन कैपिटल, जो कि एक यूएस बेस्ड हेज फंड है, उसका पैसेज टू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड मैनेज करते थे। और इनकी भी मतलब अच्छी खासी स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है। इन्होंने इस फंड के बीच में ज्योति रेजिन को पिक किया था। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन 2013 इज टुडे वैल्यूड एट 700 करोड़। सो सिमिलरली एस्ट्रल पाइप 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे पिक की थी, जो आज 60,000 करोड़ है। एंड मैनी मोर, मतलब पीडी लाइट है, वॉरी रिन्यूएबल्स है, रेफेक्स है। तो काफी अच्छी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, जिन्होंने बेहद अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो हम तीनों फाइनली डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और किस कंपनी को हमें अवॉइड करना है। These are all our research team analysts. These are CFA level 1, level 2, level 3 people, जो कि अगेन कंपनीज को एनालाइज करते हैं अपने अपने सेक्टर्स के हिसाब से,
and accordingly we take a call. Then we also have operations team. We are a 80 member team, 80 लोगों की हमारी ऑलमोस्ट टीम है, जो कि अभी एचओ हमारा हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है, दिल्ली एनसीआर में. And we have recently opened our office at Ludhiana, in Ludhiana Stock Exchange, and we are going to open our offices at Mumbai as well as Indore very soon. मतलब in coming months हमने already वहाँ की teams finalize कर ली हैं, तो वहां पर भी हम वेंचर आउट कर रहे हैं. सिमिलरली पंजाब में भी अलग अलग लोकेशंस पे, चंडीगढ़, जलंधर और एंड मेनी मोर लोकेशंस पे, कुछ 5 लोकेशंस हमने पंजाब और हिमाचल की फाइनल की हैं. सिमिलरली मध्य प्रदेश की 4-5 ब्रांचेस वहां पर लेकर आ रहे हैं, और मुंबई में भी ऑफिसेज होंगे. सिमिलरली गुजरात में हम लोग देख रहे हैं जो हमें वहां पर रिप्रेजेंट कर सके. तो दिस इज अबाउट द टीम. Now I'll come to our philosophy. Now, how do we pick companies? What do we see in it? Everything regarding that. तो our investment approach is simple. मतलब हम क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 ही चीजें मैटर करती हैं, कि आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कब एग्जिट करना है. एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय है, कि क्या खरीदना है और कब खरीदना है. क्योंकि मतलब एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न में और पीएमएस या एआईएफ के रिटर्न में यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एआईएफ बाउंडेड नहीं है. उसको पता है कि इन्वेस्टर का पैसा उसको वापस करना है, तो दे टेक एग्जिट. जबकि म्यूचुअल फंड आपको पैसे आपके वापस नहीं देता जब तक मांगते नहीं. तो क्योंकि उसकी फीस जो स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से अलाइंड है कि जहां पे वो हमेशा इन्वेस्टेड रहे. इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, सो वी कॉल दिस एज एलएमवीटी. तो एल गोज फॉर लीडरशिप, एम गोज फॉर मोट, वी गोज फॉर वैल्यूएशन एंड टी गोज फॉर टेलविंड. तो लीडरशिप हम कहते हैं कि पहले बंदा बाद में धंधा. बेसिकली प्रमोटर कैसा है, मैनेजमेंट टीम उसकी, प्रमोटर की विजन कैसी है, कितना बड़ा सोच पा रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी प्रमोटर की जो बेसिकली मैनेजमेंट टीम है वो कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. ये सब पार्ट लीडरशिप का बनता है. बेसिकली आपकी टीम में धीरू भाई अंबानी है या अनिल अंबानी है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है. एक आदमी ने मिट्टी को सोना किया और दूसरे ने सोने को मिट्टी. तो लीडरशिप बहुत मैटर करती है. द सेकंड इज मोट, कि कंपनी का बेसिकली की डिफरेंशिएटर क्या है. क्या वो एक नॉर्मल कमोडिटी को ट्रेड या बना रहे हैं वर्सेस, या फिर कोई ऐसे बिजनेस में है जहां दूसरा बिजनेस उनके उस बिजनेस में जल्दी जल्दी एंटर नहीं कर सकता. इन सबसे मार्जिन सब प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो, कोई ऐसा बेसिकली कोई पेटेंट हो, कोई लाइसेंस हो सकता है उनका प्रोडक्ट ही उनका एक मोट हो, या कोई उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी मोट हो. ये सब पार्ट बेसिकली मोट का पार्ट बन जाते हैं. किस बिजनेस किस इंडस्ट्री में वो बेसिकली वर्क कर रहा है, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मार्केट साइज कितना है उस इंडस्ट्री का, ये भी सब पार्ट मोट का बनता है. देन कम्स वैल्यूएशन, कि अपने को बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिलती है, और जहां एक 10 रुपए की थिंग 75 रुपए में मिलती है. तो ये वैल्यूएशन से डिसाइड किया जा सकता है कि किस कंपनी में एंटर करना है और किस कंपनी को हमें अवॉइड करना है. तो हमें कंपनीज वो पसंद है जिनका सर्टेन की रेशियोज सही हो, जो कि अच्छी वैल्यूएशंस पे हमें अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट के लिए. एंड देन टी गोज फॉर टेलविंड. टेलविंड में हम ये बोलते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट का इस वक्त या लोगों का इस वक्त फोकस किस चीज पे है. जैसे दुनिया का इस वक्त फोकस ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और गवर्नमेंट का इस वक्त जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस पे, सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्लीन वाटर पे, रेलवेज पे, इन सब सेक्टर्स पे है. तो वैसी कंपनीज हमें भी पसंद आती हैं, क्योंकि ये सब कंपनीज पीएलआई स्कीम्स का और इन सब चीजों का पार्ट रहती हैं. Excuse me. अब बात करते हैं जी कि हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो सिमिलर ही है कि हम जब भी किसी कंपनी को देखते हैं तो हमारा मेन मोटो होता है कि अगले 3 से 7 साल में, 3 to 7 years, कंपनी ओवरऑल कैसा बिजनेस खड़ा कर सकती है, उसकी अर्निंग की एक्सपेक्टेशन हमें क्या समझ में आती है, जो कि एक टाइम बाउंड फैशन में काम कर रही हो, एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रही हो. वैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं. द सेकंड पार्ट इज ड्यू डिलीजेंस. किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में 2 तरह का रिस्क हमें समझ में आता है.
पहला है कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में डेट ज्यादा हो, दो ही तरह के बिजनेसेस फेल होते हैं, या तो कंपनी का डेट ज्यादा हो या फिर उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लूज हो। तो अगर डेट ज्यादा होगा तो जब भी कोई डाउन टाइम आता है, डाउन टर्न टाइम आता है, इट कुड बी अ रिसेशन, इट कुड बी अ डिप्रेशन, इट कुड बी कोविड लाइक सिचुएशन, इट कुड बी वॉर लाइक सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोगों के पास ज्यादा डेट हो, वो उस डेट को सर्विस नहीं कर पाते। तो ऐसी कंपनीज हम अवॉइड करते हैं। सिमिलरली जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी ना हो, जो वो लीडरशिप का पार्ट आ गया, तो बेसिकली हम इसको फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, जहां पर हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। बेसिकली इट्स 85 पॉइंट चेकलिस्ट, जिसमें हम क्वालिटेटिव साइड पे देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना की जा रही हो, अनरिलेटेड बिजनेस में बिजनेस ना क्लॉक किया जा रहा हो। रिसेंटली आई हैड गॉट अ कंपनी, विदाउट टेकिंग कंपनीज नेम, कि जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी, पॉलिटिकल बैग्ड थी, और उन्होंने बताया कि हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और सचिन तेंदुलकर ने हमारे में इन्वेस्ट किया हुआ। एंड वी सेड वेरी गुड, इंडिया में सेमीकंडक्टर्स हार्डली कोई कंपनीज बना रही हैं। एंड व्हेन वी ओपन द बुक्स वी सॉ कि उन्होंने अपनी बुक्स में कैश्यूज को रिकॉर्ड किया हुआ है अकाउंट्स में। एंड व्हेन वी आस्क कि यार कैश्यूज का सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप, तो दे नेवर केम बैक। तो वो चार क्वेश्चंस का भी हमारे आंसर नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली अपने रेवेन्यू को घुमाने के लिए या अपने प्रॉफिट्स को घुमाने के लिए बहुत सारे हैंकी पैंकी स्टफ करती हैं। अगर वो आपको समझ में आते हैं तो वो रिस्क काफी मिटिगेट हो जाता है कि आप किसी भी लो क्वालिटी ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ऐसे क्वांटिटेटिव साइड में है, लोग बोलते हैं हमने प्रॉफिट है तो हम बोलते हैं कि कितना टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स कितना भरा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सब पार्ट आता है कि उसने ऑडिटर कितनी बार बदले हैं, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन कितने खड़े हैं उसके अगेंस्ट, कंप्लायंसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, प्रमोटर की क्रिमिनल हिस्ट्री कितनी है, ऑडिटर का कोई मतलब मैनेजमेंट को या ऑडिटर को ओवर कॉम्पनसेट ना कर रहे हो, या बार बार टीम को ना बदलते हो। तो ये सारे साइंस रहते हैं जनरली, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है। ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमें हाई ग्रोथ बिजनेसेस, जहां पे हमें एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लीन हो और एक अर्निंग की एक्सपेक्टेशन समझ में आती हो कि अगले 3 से 5 साल 7 साल में कैसा बिजनेस बन जाएगा, वैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है। ओवरऑल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए मतलब वी डू प्रॉपर एसेट एलोकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी कंपनी में हमारा एक्सपोजर 0.5 से 2% से ज्यादा नहीं होता एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में मतलब कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगी क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 1,000 करोड़ फंड। बट मतलब एक कंपनी के बीच में हम ओवरऑल ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते, सो दैट हमारा रिस्क मिटिगेटेड रहे। और मतलब इनफैक्ट जो बोला जाता है कि अगर आप 50 कंपनी से ऊपर अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो देन यू हैव ऑलमोस्ट मतलब सर्टेनली यू विल हैव एन आउटलायर। आउटलायर इज लाइक अ कंपनी विच आई शोन अर्लियर, कि एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी एंड इन नेक्स्ट 3 to 5 years 7 years दैट वेंट ऑन टू बिकम 100 times। तो आपने सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी से बना लिया। बेसिकली आपने अपना अगर 1,000 करोड़ का फंड है, लेट्स से आपने 10 करोड़ लगाए, तो उसी ने आपका सारा पैसा बना दिया, बाकी सारा तो एडिशनल रिटर्न्स है। तो नंबर ऑफ कंपनीज का ओवरऑल और असेट एलोकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन रहता है हमारा प्रॉपरली। ये हमारी कुछ पास्ट परफॉर्मेंस रही है। तो नीचे की लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब शेयर्स में हमने पैसे लगाए थे, जैसे आनंद राठी और बेस, टाटा टेक्नोलॉजी, एनएससी आजकल काफी फेमस है हमारी मार्केट में, सीएस के अलावा। और अगर किसी ने 10-10 लाख रुपए सारी कंपनीज में लगाए होते तो 4.1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज 16 करोड़ है। 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डिलीवरिंग अ सीएजीआर रिटर्न ऑफ क्लोज टू 98% ओवर अ मीडियन होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के करीब का इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ये रिटर्न्स हमारे प्लानिफाई में आए हैं। मैं अभी फैक्ट शीट में वो भी दिखाऊंगा कि जो हमारे परफॉर्मेंसेस वेंचर एक्स फंड में भी रहे हैं। ये कुछ कंपनीज हमने अपने फंड में भी ली हैं, केसी एनर्जी, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, सरोवर पोर्टिगो, और ऑर्किड की चेन चला रहे हैं साउथ में, स्पेशली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी। सिमिलरली जेडी केबल्स, ये सब हमने फंड में अपने लिए हैं। देन दीज आर द कंपनीज जो हमने पहले
प्लानिफाई में इन्वेस्ट किया था अपने एज अ प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सारी कंपनीज, उन सब कंपनीज का ये सब कंपनीज पार्ट रही हैं। अगर मैं फंड की बात करूं तो दिस इज एज सेफ एज एनीथिंग विच इज गवर्न्ड बाय सेबी। तो जैसे म्यूचुअल फंड में मैं बोलूं तो पैसे ओवरऑल सेफ रहते हैं इन्वेस्टर के, वैसे ही एआईएफ है। एआईएफ भी बिकॉज सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, सेबी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर है जैसा कि एक म्यूचुअल फंड में रहता है। इसमें भी वही 7 बॉडीज हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड में रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में रिलायंस बिक गई और इट वाज टेकन ओवर बाय निपॉन इंडिया, तो द मनी वाज सेफ फॉर द इन्वेस्टर्स। द सिमिलर स्ट्रक्चर इज हियर फॉर एआईएफ। तो यहाँ पे जैसे कस्टोडियन है, कस्टोडियन का काम रहता है, जैसे हमारा कस्टोडियन आईसीआईसी बैंक है, तो कस्टोडियन का काम रहता है कि वो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन, तो वी डोंट हैव assets over are under control, it comes under custodian। जो कि अगर कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं या कोई शेयर बेचने के लिए ट्रांसफर करने हैं, एवरीथिंग इज विद हिम। तो वो डिसाइड करता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसको गलत लगती है तो ही कैन रिजेक्ट दैट एंड रिपोर्ट द फंड मैनेजर टू द सेबी। और कोई भी इतना, मतलब जैसे हमें 1.5 साल लगा है लाइसेंस लेने के लिए, कोई भी इतना तामझाम करके, मतलब ऐसी कोई भी फालतू चीज करता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि लोग अच्छे ऊपर बैठे हैं, नथिंग विल गेट अप्रूव। सिमिलरली फंड अकाउंटेंट, आरटीए, केवाईसी, तो फंड अकाउंटेंट इज द पर्सन जो एनएवी कंप्यूट करता है। के फिनटेक इज द टीम, इवन फॉर निपॉन इंडिया के फिनटेक ही करता है उनका भी। सिमिलरली आरटीए का काम होता है कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो बेसिकली यूनिट्स को ट्रांसफर कर देता है, और यूनिट्स अलॉट करता है किसी भी इन्वेस्टर को। और केवाईसी इज नो योर कस्टमर, विच हुज वर्क इज टू बेसिकली रजिस्टर एंड इन्वेस्टर टू द फंड, ताकि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी गलत पैसा फंड के बीच में ना आए। तो गवर्नमेंट ये सब चीजों के लिए बड़ी पर्टिकुलर है। दीज आर ऑल थर्ड पार्टी थिंग्स, सो दैट दिस कैन नॉट बी, मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजेस विच एनी फंड मैनेजर कैन डू। ठीक है ना। कस्टोडियन की बात करके अलावा हमारे ऊपर ट्रस्टी बैठा है जी, जो हमारा बेसिकली काइंड ऑफ बॉस है, who checks कि whether we are fulfilling all the compliances set by SEBI। अगर मैं फंड के बारे में वैसे बात करूं तो ये 1,000 करोड़ का इट इज गोइंग टू बी अ फंड। ओवरऑल 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट एवरी क्वार्टर है। ऑलमोस्ट हम फर्स्ट क्वार्टर खत्म कर चुके हैं, तो वो फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से अब हम पहले महीने में पहली मनी कॉल में, अ, मतलब वी कॉल इन क्लोज टू 20% ऑफ द मनी। तो एग्जाम्पल में अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख रुपए पर क्वार्टर आपको देनी है फॉर 10 क्वार्टर्स। तो फॉर फर्स्ट क्वार्टर समवन इज पेइंग 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स है तो 40 लाख, सेकेंड ईयर में फिर 4 क्वार्टर्स है तो 40 लाख, एंड इन द थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर्स 20 लाख। सो दिस इज द टोटल 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको मैं टाइमलाइंस के हिसाब से भी समझा सकता हूँ। तो क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हम अभी 20 लाख कह रहे हैं कि 20 लाख मनी कॉल में ले रहे हैं। ऑल्दो इन्वेस्टर हैज द चॉइस, वो रादर देन 2.5 ईयर की बजाय इकट्ठा 1 करोड़ डालना चाहता है, वो 6 महीने में 1 करोड़ डालना चाहता है, इट इज अप टू हिम। मतलब वो जैसे अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहे। द ओनली बेनिफिट ही विल गेट इज कि ही विल गेट्स एक्स्ट्रा यूनिट्स एट अ बेटर एनएवी। बट अगर हमारे हिसाब से भी वो 2.5 साल में भी डालेगा तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके 1 साल के बाद, तो पहले 2.5 साल में इन्वेस्टमेंट जाएगी, उसके 1 साल के बाद 3.5 से 6 के बीच में एग्जिट होना स्टार्ट होगा। तो फॉर 2.5 years इट देर विल बी एन एग्जिट टू द फंड। तो जैसे जैसे कंपनीज रेडी, मतलब हम बेसिकली सेल करते जाएंगे, वो पैसा हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो पैसा हम वापस कर रहे हैं। ऑल्दो दीज आर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर लिस्टेड एसएमईज, तो हम कंपनी को मतलब मतलब पहले भी बेच सकते हैं 3.5 साल में, बट दिस इज द ब्रॉडर रेंज। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि कंपनी एसएमई टू मेन बोर्ड 3.5 साल बाद मूव होती है, तो हमारे लिए एग्जिट वो ज्यादा सिंपल हो जाता है कि हमने एग्जिट किया और म्यूचुअल फंड को एज अ ब्लॉक डील पास कर दिया। ऑल्दो लिस्टेड स्टॉक है, कहीं पर भी कभी भी बेचा जा सकता है। तो 3.5 से 6 साल में, 2.5 साल में एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी कंपनी में हमने 10 करोड़ लगाए, अगले 3.5 4 साल में वो 100 करोड़ बन गया, तो 100 करोड़ पे एग्जिट हुआ। एंड इफ इट बिकम्स अ 1,000 करोड़ फंड, तो सबको 10-10 लाख रुपए। सिमिलर कंपनी में लेट्स से हमने 5 करोड़ लगाए, एंड इट बिकम्स अगेन 100 करोड़,
तो इस बार भी सभी को 10-10 लाख रुपए वो और वापस आ गए, तो 20 लाख रुपए अभी प्रिंसिपल वापस आया है। ऐसे करते करते पहले 1 करोड़ रुपए वापस आएगा, फिर 12% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न वापस आएगा, एंड देन टोटल का 80-20 प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो उस मॉडल को भी एक बार समझ लेते हैं। और इसको समझने से पहले, मॉडल को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पैसे लगा रहे हैं। अभी तक हम 536 अपॉर्चुनिटी स्क्रीन कर चुके हैं टिल 30 ऑफ मई, है ना, 31 ऑफ मई, और अभी तक हमने 4 कंपनीज में इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। तो मतलब हमारा सिलेक्शन रेशियो ऑलमोस्ट 0.75% का है। इन 4 कंपनीज में से 2 प्री आईपीओ है, मतलब आईपीओ से पहले एसएमई में भी कई बार कंपनी हमें प्री आईपीओ में समझ में आ जाती है। एक इसमें ऑलमोस्ट एज एन एंकर भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि आईपीओ पे हमने शेयर लिया था और एक बारी हमने क्यूआईबी में प्लेसमेंट ली है। तो एक कंपनी में जब बाद में राउंड रेज हो रहा था तब हमने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था। तो अभी तक 4 कंपनीज में हमने ऐसे पैसे लगाए हैं। अभी तक हमने सेकेंडरी मार्केट में से कुछ नहीं उठाया है, तो हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन में वहां पर गैप लग रहा है। Overall, this is the distribution. 220 is the normal standard thing. Management fees is 2% of the initial investment and 20% is the carry. 20% goes to the fund. मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो मैनेजमेंट फीस 2% इज ऑन द प्रिंसिपल ऑन द इनिशियल कमिटमेंट अमाउंट। तो मान लीजिए, और हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड चार्जेस ऑन द ईयूएम। तो जैसे म्यूचुअल फंड ने अगर 1 करोड़ का 10 करोड़ किया तो वो 10 करोड़ के ऊपर फीस ले रहा होगा। अगर 2% की ही फीस है तो वो 1 करोड़ पे अगर 2 लाख ले रहा है तो 10 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए की हर साल फीस ले रहा होगा। तो अगर 5 साल फंड चलता है तो उसने 1 करोड़ की फीस ले ली, 10 साल फंड चलता है तो उसने 2 करोड़ की फीस ले ली, डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी वो परफॉर्म कर रहा है। वेयर इन हमारे केस में क्या रहता है कि ईआईएफ हमेशा चाहे 1 करोड़ का 10 करोड़ करे, चाहे 1 करोड़ का 20 करोड़ करे, वो हमेशा 2 लाख रुपए ही करेगा। वो वो 2 लाख को बढ़ाएगा नहीं, वो इनिशियल कमिटमेंट अमाउंट पे लेगा। वेयर एज जो कैश पार्ट है वो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड। आप और आपका फंड मैनेजर एक ही बोट में है। तो बेसिकली 20% प्रॉफिट शेयरिंग का फंड मैनेजर लेता है, तो उसको भी पता है कि राइट टाइम टू एग्जिट पे एग्जिट भी करना है, ताकि उसका कट भी सही टाइम पे सही बने। अगर एग्जिट सही टाइम पे नहीं करेगा तो उतना ही रिटर्न उसके लिए भी कम बनेगा। इसलिए ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट मेथड गिना जाता है। वॉरेन बफे 75-25 करते हैं यूएस में, या वहाँ 75-25 भी काफी चलता है। वहाँ हर्डल रेट वॉरेन बफे 6% का देते हैं। वॉरेन बफे इज है ना वर्ल्ड्स, मतलब ही इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर आई विल से। तो वहां पे 6% का वो हर्डल देते हैं। इंडिया में जनरली हर्डल रेट 8 to 10% चलता है, और इंडिया में जनरली 220 चलता है। ऑल्दो 90% ऑफ द फंड्स डू 8 to 10% ऑफ हर्डल, हमने हर्डल 12% का दिया है। CAGR मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, मतलब बेसिकली 1% का ब्याज हो गया। और इसके ऊपर जो टोटल आएगा उसका 80-20 करते हैं। तो ये टोटल का 80-20 है, रिमेनिंग का 80-20 नहीं है। तो इसको भी अगेन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, एंड बाय द एंड ऑफ 4-5 ईयर्स फंड की वैल्यू 6 करोड़ बन जाती है। तो 6 करोड़ में पहला 1 करोड़ तो प्रिंसिपल है, इन्वेस्टर का वापस आ गया। 5 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें से 80% मतलब 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के पास चले गए, एंड 1 करोड़ गोज टू द फंड। तो इन्वेस्टर के पास 4 करोड़ का प्रॉफिट और 1 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ वापस आए और फंड के पास 1 करोड़ चला गया। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जिसमें हर्डल भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैंने इस एग्जाम्पल में 100 रुपीज को 200 रुपीज बनाया है इन जस्ट 1 ईयर। तो 100 रुपीज के ऊपर अगर मेरा 200 रुपये में पहले तो इनिशियल रीपेमेंट है प्रिंसिपल का, 100 रुपीज चले गए तो मेरे पास 100 रुपीज बचे। उसमें से 12% हर्डल का चला गया तो 88 रुपीज बचे। अब पहले 12 इन्वेस्टर के थे, तो अगले 3 IM के हैं, तो 88 में से 3 निकले, 85 बचे। अब मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इस 15 का अगर आप 80 देखें, 15 का 80% इज 12, एंड 15 का 20% इज 3। तो बस इसमें फर्क ये है कि पहले 12 इन्वेस्टर के हो गए, उसके बाद शेयरिंग है। अगर कि कोई फंड लेट्स से इज एबल टू ओनली जनरेट अप टिल 12%, तब तो कोई शेयरिंग नहीं होगी, उसके बाद ही शेयरिंग होगी। तो पहले 12 इन्वेस्टर के, अगले 3 IM के, 85 रुपीज बचे हैं अभी टोटल हमारे पास। उस 85 का हमने 80-20 किया तो 68 चले गए फंड के पास, इन्वेस्टर के पास, और 17 चले गए IM के पास।
तो 68 plus 12, 80, and 17 plus 3 is 20. तो 20% goes to the fund and 80% goes to the investor. इन्वेस्टर के पास प्रिंसिपल को मिला के 180 आ गया और फंड के पास 20 चला गया. सो दिस इज वन एग्जांपल. सिमिलर एग्जांपल मैंने एक 1000 करोड़ का इलस्ट्रेशन के लिए 5x बना के 5000 करोड़ का बनाकर दिया है. तो अगेन एक्सप्लेनेशन वही सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी. ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस काफी सिंपल है जी. ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन है. वी डोंट देयर इज नो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन. तो नेस्टर की जैसी डॉक्यूमेंटेशन अगर सब कुछ तैयार है उसका, लेट्स से आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक एंड क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ही कैन गेट इट अपलोडेड. वो सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, सिग्नेचर एंड एवरीथिंग. केवाईसी वेरीफाई करके सेम डे वापस इन्वेस्टर के पास चली जाती है. ट्रस्टी के थ्रू केवाईसी कंप्लीशन हो जाता है एंड देन ही कैन बेसिकली इन्वेस्ट इन द फंड. So that's pretty much from my side. And then these are the contact details. Thank you, Rajesh ji. So we can move towards the Q&A. So let me see what my clients are asking from you. So my client is asking that, what do you see, about the market outlook? क्या बोलना चाहोगे अभी बाजार के बारे में? क्या दिख रहा है आगे आने वाले समय में बाजार? देखिए जी, बाजार ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं तो जो 2-3 हिकअप्स दिख रहे थे पहले कि एक बारी ट्रम्प जी का ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था, वो अब सेटल डाउन हो गया. इंडिया पाकिस्तान शुरू हुआ था, वो सेटल डाउन हो गया. डिप्रेशन की बहुत सारी बातें, रिसेशन की बातें हो रही थी यूएस में जनवरी में, फरवरी में, वो भी काफी सेटल डाउन हो गया. तो एज सच इस वक्त तो कोई नेगेटिव न्यूज ही नहीं है मार्केट में. मतलब अपार्ट फ्रॉम टुडे हॉरिबल न्यूज व्हिच वी गॉट एट अहमदाबाद, अदरवाइज मतलब वो बहुत ही एक मतलब एट अ पर्सनल लेवल मतलब बहुत बुरी न्यूज है सुनने के लिए. अगेन फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो बहुत अच्छा लग ही रहा है. और लॉन्ग टर्म में तो हम बोलते हैं कि एसएमईज के बीच में मतलब इवन कोई छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे भी, जो कि बाजार कभी ना कभी जनरेट करता भी रहेगा. हमें तो लॉन्ग रन देखना है. आज डिफेंस में इंडिया में नई कंपनीज आ रही हैं और गवर्नमेंट खुद ही 5-5, 10-10 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़, हजार करोड़ के ऑर्डर बुक दे रही है कंपनीज को, जो कि हम पहले सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे. सिमिलरली सोलर का है. जितनी अभी तक इतनी कंपनी सोलर में आ गई और स्टिल जो टारगेट गवर्नमेंट लेकर चल रही है उसके अभी भी शॉर्टफॉल में हम, और उतने तरह का काम दिया जा रहा है. सिमिलरली विंड में है और रेलवेज में भी सिमिलर स्टोरी है. तो यहाँ पर काम मतलब द स्पेंड विच इज द गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूज. तो उसको जो भी एनकैश कर रहा है वो अगले 5 साल 10 साल में उस कंपनी की किटी में आने वाला ही है वो बिजनेस. ऐसे बिजनेसेस को हमें पकड़ना है अच्छे लेवल पे और उसको राइड ऑन कर कर बैठना है. छोटे मोटे हिकअप्स से मतलब अपने को घबराना ही नहीं है. एब्सोल्युटली राइट. ये तो देखने को मिला है सर कि अभी सोलार कंपनी कुछ जो आपके गुजरात में फेमस में है, जो आप जानते हो, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे. दे आर डूइंग अमेजिंग. कहाँ 250 करोड़ का वैल्यूएशन था, आज कहाँ 3-3.5 करोड़ के वैल्यूएशन पे बैठे हैं. और वो भी ज्यादा समय नहीं लगा, 17-18 महीनों के अंदर देखने को मिला है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन है. तो बाजार भी सही लग रहा है. थैंक्स राजेश जी once again for coming on this show, and we would like to invite you again soon. Thanks everyone for joining this show and giving your valuable time. If anybody wants to reach us, you can reach us at 8368-586435, or you can email us at devanshu@aifpms.com, or you can log in us at www.aifpms.com. Thank you, Rajesh ji. Thank you, everyone. Have a lovely day. Thank you for having me. Bye bye guys. Take care. Bye.